Hello everyone, welcome to the channel. So today Edushil is bringing you the Sampurna series. Now, this is a series in which we are going to cover the last 1 year current affairs from the month of September 2025 till this month of October 2024. Complete current affairs of 1 year will be covered in this Sampurna series. Around 12 to 14 videos will be made available with the PDFs on the Telegram channel. And in addition to the current affair MCQs, the integrated static points as well as the other current affairs which is related to the mind maps will also be given. Now, this series is very much beneficial for the current affairs revision, and जब तक ये सीरीज खत्म होगी वी आर गोइंग टू रिवाइज मोर देन 1000 पॉइंट्स which is related to the current affairs as well as the static portion. The MCQs that have been made is also very much helpful. अगर आप इस वीडियो को 10 to 15 minutes तक देखोगे you will get to know the utility of this series. Okay. Now, if you want the PDF of this first lecture, you can get that from the Telegram channel. And if you want to join the initiative, you can join the Telegram channel and the queries are available there. Okay. Now, let us start with the set first, in which we have included the theme wise. Now, this series is going to be theme wise. ठीक है, थीम वाइज सीरीज होने वाली है जिसमें अराउंड 10 सेट्स हम कंप्लीट करेंगे. वी विल कंप्लीट अराउंड 10 सेट्स जो कि इंटरनेशनल रिलेशन, नेशनल अफेयर्स एटसेट्रा. ये टोटल 10 वेरियस थीम्स होंगी जो कि 10 सेट्स में डिवाइडेड है. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ आवर टुडेज national current affairs plus some of the international current affairs is also there. Now, let us start with the first question. Which of the following statement about the National Turmeric Board is or are correct? Now, this is indeed a current affair question because Union Budget 2025-26 में this was a there was a provision to establish a National Turmeric Board as well as a National Makhana Board. ठीक है, that is why this question becomes very much important. Now, the first statement is the headquarter is located in Hyderabad, Telangana. And the second statement is the chairman of the turmeric board is Tuhin Kant Pandey. Now, you can just pause this video to try this question on your own. I hope you have tried this question. And if you have answered both are correct, then you are absolutely wrong. Because the correct answer to this question is none. नाउ ये क्वेश्चन सिर्फ उन लोगों का सही हुआ होगा जिन लोगों ने करंट अफेयर्स को सम डेप्थ के साथ पढ़ा होगा. ठीक है, सो व्हाट इज द कैच हियर? नाउ द हेडक्वार्टर इज इंडीड लोकेटेड इन तेलंगाना बट नॉट हैदराबाद बट निजामाबाद. सो द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल टर्मरिक बोर्ड is located in Nizamabad, Telangana. Also, the chairman of this board is Palle Gangadhar Pandey. Okay, so the question here is asking that the chairman of the turmeric board is Tuhind Kant Pandey, which is absolutely incorrect because Tuhind Kant Pandey is the chairman of the Security Exchange of Board of India, that is SEBI. Now, SEBI का काम क्या होता है? The main work of SEBI is to regulate the stock market in India and protect the interest of the investors. इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम यहाँ पे सेबी करता है. ठीक है. सिमिलरली IRDAI is the regulator of the insurance sector in India. इन एडिशन टू दैट आपको पता होना चाहिए इंश्योरेंस में अभी 100% FDI is allowed. So these 2 points are also important. But the main important thing तो हम अभी शुरुआत करने वाले हैं. Because we have seen about turmeric in this video, so you should know some of the static points, and these static points are very much important for the state PSC examination as well as the UPSC examination. ठीक है. Now, what about turmeric is important? Now, turmeric is actually a spice that is derived from the root of curcuma longa. Now, you should remember that turmeric का जो scientific name है ये है curcuma longa. Curcuma longa is the scientific name of the turmeric. And turmeric is a plant that belongs to the ginger family. So 2 points you need to remember, that curcuma longa is a scientific name and it belongs to the ginger family. अब जो भी वीडियोस आएंगी 13 to 14 विच इज़ एन पेड इनिशिएटिव ऑन द चैनल, ये सारी आपको इसी फॉर्मेट में मिलेंगी. जैसे जैसे वो वीडियोस आएंगी आपको PDFs भी उसके साथ सब्सिक्वेंटली दी जाएंगी. ठीक है. सो ये इनिशिएटिव में आपको वीडियोस भी मिलेंगी रिवीजन के लिए
एंड इन एडिशन टू दैट PDF भी मिलेगी, ठीक है। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, सारी डिटेल्स वहां पे आपको अवेलेबल है। नाउ ऑल्सो टर्मरिक के बारे में यू नीड टू नो दैट दिस स्पीसीज, दिस स्पाइस इज नेटिव टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया। अभी अगर स्टेटमेंट फॉर्म में द क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट दिस टर्मरिक बिलोंग्स टू द अफ्रीका, टर्मरिक इज द टर्मरिक स्पाइस इज नेटिव टू द अफ्रीकन सबकॉन्टिनेंट, सो वहां आपको ध्यान में रखना है, नो दिस इज नेटिव टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया। ओके, नाउ some of the benefits of turmeric: it is anti-inflammatory, antioxidant, antimicrobial, anti-cancer and antiseptic properties, all of this in totality। antibacterial properties यहाँ पे turmeric में बहुत ज़्यादा मिलती हैं, that is why it is very much important। now next is मखाना। अब मैंने मखाना को यहाँ पे इंक्लूड क्यों किया है, बिकॉज as I have told you in the union budget of 2025-26 the establishment of a मखाना board was made, ठीक है। मखाना बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे किया जाने वाला है इन द स्टेट ऑफ बिहार, दैट इज वाई दिस मखाना बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द स्टैटिक इंफॉर्मेशन अबाउट मखाना। नाउ द फर्स्ट थिंग इज साइंटिफिक नेम क्या है, द साइंटिफिक नेम इज यूरेल फेरोक्स which is a species of water lily and it is found in the parts of India and Asia. So the first important point is the scientific name of Makhana, which is Urael ferox. Next is the temperature and the grounds or the soil that is predominantly very much suitable for the production of Makhana. So this is cultivated in the marshy wetlands, pond areas and the lakes. And the most important point is that the Bihar accounts for about 90% of the world production of Makhana. Okay, so this is very very important, ठीक है। now there is a formation of Makhana board to promote production and the processing and this is going to be established in the state of Bihar, ठीक है। in addition to that ये भी point आपको पता होना चाहिए, Bihar has around pyrite deposits, 90% of the pyrite deposits of India, ठीक है। next is Makhana is a superfood which has its benefit for the weight management, controlling the blood sugar levels, improving the heart health and reducing the inflammation, and it is also very much high in the protein, ठीक है। so this is a superfood। so ये यहाँ पे मखाना एंड टर्मरिक के बारे में हमने बेसिक इंफॉर्मेशन भी देख ली एंड द करंट अफेयर्स वाला एस्पेक्ट वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। नाउ दिस इज which of the following statement is or are correct? नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी ये इनॉग्रेट हुई अरुणाचल प्रदेश में, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स इज इन मुंबई। नाउ इफ यू वांट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू कैन जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड सॉल्व। नाउ लेट्स गो टू द आंसर। एंड हाँ, जितने भी क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा प्लीज मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, ठीक है। सारे जितने भी क्वेश्चंस आपने ट्राई किए हैं प्लीज़ इसको ज़रूरी इसको आप अपना असेसमेंट ज़रूर करना एंड अपने ऑनेस्टली अपना स्कोर बताना कमेंट सेक्शन में। नाउ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ओनली 2। ओके, व्हाई ओनली 2 इज करेक्ट? बिकॉज द नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी हैज बीन एस्टैब्लिश इन द स्टेट ऑफ असम एंड नॉट अरुणाचल, ठीक है। दैट इज वाई यहाँ पे द फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। Indian Institute of Skills is located in Mumbai. This is absolutely correct. Now, मुंबई से रिगार्डिंग दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे और हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, एंड दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। दिस इज एन इंटीग्रेटेड करंट अफेयर्स जिसमें कि वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दी करंट अफेयर्स एज वेल एज स्टैटिक। अभी एक क्वेश्चन एमसीक्यू यहाँ पे मुंबई पे हमने देखा, बट यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की डेवलपमेंट और है मुंबई से रिलेटेड जो आपको पता होनी चाहिए। एंड अगर आप इस तरीके से तैयारी करोगे एंड इस तरीके से करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक को रिवाइज करोगे तो आई एम प्रिटी मच श्योर दैट यू विल बी एबल टू क्लियर एनी ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। सो मुंबई में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज इनॉग्रेटेड द बंजारा विरासत म्यूजियम, ठीक है। बंजारा विरासत म्यूजियम ये इनॉग्रेट किया गया है मुंबई में। इन एडिशन टू दैट देयर इज अ bridge in Mumbai which is known as the Karnik Bridge. It was recently named as the Sindoor Bridge. Okay.
नाउ ऑपरेशन सिंदूर यू ऑल नो अबाउट, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद द कार्नेक ब्रिज इन मुंबई वॉज रीनेम्ड एज सिंदूर ब्रिज. सो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड that recently which bridge was renamed as Sindoor Bridge. So this was the Karnak Bridge in Mumbai. ठीक है, यहां से हमने अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया. बट लेट अस नाउ फोकस ऑन द करंट अफेयर्स एज वेल एज द स्टैटिक पॉइंट. अभी बिकॉज द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा नॉर्थ इंडिया फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी हमारी असम में है. सो हम देखते हैं असम से रिलेटेड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट भी एंड करंट अफेयर्स भी. ठीक है, सो ये पर्टिकुलर सेकंड क्वेश्चन से आपके मोर देन 20 प्लस क्वेश्चंस प्रिपेयर ऑलरेडी हो चुके हैं. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ असम की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे द फाउंडेशन और द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अहोम डायनेस्टी इन नेपाल. अहोम डायनेस्टी इज वेरी मच इन न्यूज. व्हाई इन न्यूज मैं आपको आगे बताऊंगा. नाउ दिस अहोम डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम the year 2028 CE to 1826 CE. So this was the tenure of the Ahom dynasty. Who was the founder of this dynasty? Sukhafa was the founder. And the most famous leader of the Ahom dynasty was Lachit Borphukan. Now this is important. Why this is important? Because 2023 के around PM मोदी ने इनॉग्रेट किया था द स्टैचू ऑफ लचित बॉरगोहाइन इन असम. ठीक है, सो दैट इज व्हाई दिस बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट. एंड अहोम डायनेस्टी से रिलेटेड एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, सो दिस इज कि बैटल ऑफ सरायघाट was fought in the year 1671. So battle of Saraighat was fought between the Ahom dynasty. It was fought between it was fought between the Ahom dynasty and the Mughals. Okay, एंड मुगल में भी उस टाइम पे रूलर कौन था? द रूलर वाज जहांगीर. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ असम. नाउ टॉकिंग अबाउट द इंटरनल बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट, द असम शेयर्स द बॉर्डर विद द इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मेघालय. On the other hand, if I talk about the international border of Assam, so it shares the border with two countries, that is Bhutan and Bangladesh. Okay, now, in addition to that, some of the major rivers of Assam are Brahmaputra, Barak, Dibang, Lohit, Subansiri, and Kapili. These are the rivers, major rivers of the Assam. In addition to that, if I talk about the national parks includes the Kaziranga National Park, जहाँ पे there is a prominent population of one-horned rhinoceros. In addition to that, Manas Tiger Reserve, Kamakhya Temple is also there, and Majuli, which is the largest riverine island, which is on the river Brahmaputra, is also there in Assam. ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आपके असम से रिलेटेड है एंड इट इज वेरी मच एसेंशियल. नाउ द नेक्स्ट इज पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो इन असम. अब पोबितोरा के बारे में अगर मैं बताऊं तो द हाईएस्ट डेंसिटी, इफ आई टॉक अबाउट द डेंसिटी ऑफ one-horned rhinoceros, so the highest density is there in Pobitora. But if I talk about the number of one-horned rhinoceros सबसे ज़्यादा कौन से नेशनल पार्क में है, so वो काजीरंगा में है. But the density of one-horned rhino is maximum in Pobitora Wildlife Sanctuary. I hope you have understood this point of distinction. ठीक है, now some of the current snippets देख लेते हैं ऑफ 1 ईयर, पास्ट 1 ईयर, जिसकी वजह से असम हैज बीन इन न्यूज. तो ये भी आपके एमसीक्यूज ही समझ लो इसको आप, क्योंकि ये सारे भी करंट अफेयर से ही रिलेटेड है. नाउ द फर्स्ट थिंग of about Assam is Dibrugarh has announced to be the second capital of Assam. सबसे पहला तो आपके लिए ये important है. Next thing is about the Nijut Moina scheme. Now this Nijut Moina scheme has been announced by the Assam government and it aims to encourage the girls to continue their education by providing the financial support. Okay, so Nijut Moina scheme is related to women education by providing them the financial support. Next is the Assam has become the first state to give the status of OBC to the transgenders and this is very important. बहुत important है ये क्वेश्चन आ सकता है. Next is about the Gaj Mitra scheme.
Now because elephants most prominently these are there in the southern part of the India, so आपको ये लगेगा हो सकता है गज मित्र स्कीम या तो कर्नाटका गवर्नमेंट की होगी या केरला गवर्नमेंट की होगी, but that is why this question becomes important because this Gaj Mitra scheme has been launched by the state of Assam, in which the aim is to mitigate the human elephant conflict in the high district areas. वैसे डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमन एंड एलिफेंट्स, आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें ह्यूमन का डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है एलिफेंट्स के साथ, एंड एलिफेंट समटाइम्स दे बिकम वेरी मच एग्रेसिव टुवर्ड्स द ह्यूमन, एंड दैट इज व्हाई दिस गज मित्र स्कीम, इसका एम ही है टू मिटिगेट दिस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट इन द हाई डिस्ट्रिक्ट. Another important thing is that Baathuism has been announced as an official religion in Assam, and that this current is also very much important. ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं. ओके इसके अलावा अगर मैं असम से रिलेटेड आपके करंट अफेयर्स की मैं बात करूं, सो यहाँ पे इंडिया ने टैग किया है फर्स्ट गंगा रिवर डॉल्फिन. नाउ दिस टैगिंग ऑफ द गंगा रिवर डॉल्फिन हैज बीन अंडरटेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने ये the Ministry of Environment has undertaken the tagging of the first गंगा रिवर डॉल्फिन, एंड ये असम स्टेट में ही फर्स्ट गंगा रिवर डॉल्फिन को टैग किया गया है. नाउ अगर मैं आपको गंगा रिवर डॉल्फिन के बारे में बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये जानना है, अभी रिसेंटली सेंसस कंडक्ट हुआ था अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ द गंगा रिवर डॉल्फिन. सो द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज देयर इन यूपी, एंड यूपी के बाद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज इन बिहार. सो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. अब हमारा आ गया यहाँ पे द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो लेट अस रीड द क्वेश्चन एंड उसके बाद आप ट्राई करना क्वेश्चन को सॉल्व करने का. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट. द फर्स्ट इज द ट्रैजिक पहलगाम अटैक टुक प्लेस ऑन द 22 अप्रैल 2025. अब ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज जो वन डे एग्जामिनेशन है, क्वेश्चन पेपर को डिफिकल्ट बनाने के लिए दे कैन इंक्लूड दिस क्वेश्चन. Next is, after Operation Sindoor, a delegation of 8 members was sent abroad to present India's zero tolerance policy against terrorism. So this is the second question. I hope आपने ये क्वेश्चन को ट्राई किया होगा. The correct answer to this question is only one. Why only one? Because यहाँ पे जो फैक्ट दिया है सेकेंड स्टेटमेंट में अबाउट द 8 मेंबर, दिस इज इनकरेक्ट. Why? Let us see. सो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है कि द ट्रैजिक पहलगाम अटैक्स दीज हैपेंड ऑन द 22 ऑफ अप्रैल, एंड अगर मैं क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स की बात करूं तो इसके जस्ट एक दिन पहले, दैट मीन्स ऑन द 21 ऑफ अप्रैल, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका JD वैंस केम टू इंडिया विथ हिज फैमिली, एंड इसके नेक्स्ट डे ही ये पहलगाम अटैक्स होते हैं. एंड इन रिटेलिएशन टू दैट ऑन May 7 इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पे कंडक्ट किया था. अब इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जितनी भी टेररिस्ट एस्टेब्लिशमेंट थी इन द POK, दैट इज द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, एंड द पाकिस्तान विद इन द पाकिस्तान ऑल्सो, टोटल 9 प्लेसेस थी जहाँ पे इंडिया ने अटैक किया था. एंड पाकिस्तान के रीजन में द बहावलपुर एरिया, द कोटली, दिस इज दीज लाइज इनसाइड कोर पाकिस्तान. ठीक है, तो पाकिस्तान कंट्री के अंदर घुस के यहाँ पे अटैक किया गया था. थ्रू दी सुखोई प्लेन्स एज वेल एज दी रफेल्स वेर ऑल्सो यूज, एंड मिसाइल जो यहाँ पे यूज हुई थी वो स्कैल्प मिसाइल थे. ठीक है, द स्कैल्प मिसाइल वॉज यूज इन ऑपरेशन सिंदूर. ये भी पॉइंट आपको याद में होना चाहिए. एंड ऑल ऑफ दिस जब मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करूंगा, ये सारे पॉइंट्स में इसमें इंक्लूड कर दूंगा ताकि ये कंटिन्यूएशन बनी रहे. ओके, नाउ जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट था, इन द सेकेंड स्टेटमेंट इट वॉज गिवन दैट एन 8 member कमिटी went abroad to various countries to propagate India's no terrorism tolerance policy. ठीक है, सो 8 members नहीं थे उस कमेटी में, there were 7 members. ठीक है, and it was an committee in which the members belonged from the various political parties. सिर्फ BJP से नहीं थे ये, so it was an all India delegation. Now, who were the 7 members? So the names are also important. Shashi Tharoor, you know, he is very much prominent leader of Congress party. In addition to that, Sanjay Kumar, Ravi Shankar Prasad, Baijayant Panda, Kannimoyi Karunanidhi, Supriya Sule, and Shrikant Shinde. These were the 7 members who went to the all over the world, the parliament and the delegations. The delegation visited
various countries to propagate India's view on the no terrorism tolerance policy. Okay, so that is why इस क्वेश्चन की अगर मैं सही करेक्ट आंसर की बात करूं, so the only first statement is correct, the second statement is not correct. Okay, now what additional information can we get from here? First of all, Pakistan is very much in news and UPSC एग्जामिनेशन में भी अफगानिस्तान के बारे में वो पूछ चुके हैं, द बॉर्डर्स ऑफ अफगानिस्तान. सो आपको पता होना चाहिए अबाउट द बॉर्डर्स दैट पाकिस्तान शेयर्स. द पाकिस्तान शेयर इट्स लैंड बॉर्डर्स विथ इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान एंड चाइना. It also has a southern border along the Arabian Sea and a maritime border with Oman in the Gulf of Oman. सो लैंड बॉर्डर जो है पाकिस्तान शेयर करता है इंडिया, अफगानिस्तान एंड ईरान एंड चाइना, ये 4 कंट्रीज के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है. इन एडिशन टू दैट सदर्न बॉर्डर जो है दैट लाइज विद द अरेबियन सी एंड द मैरीटाइम बॉर्डर इज शेयर्ड विथ ओमान इन द गल्फ ऑफ ओमान. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये ऊपर के 4 तो आप गेस कर सकते हो, ये मैरीटाइम बॉर्डर का ध्यान रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक पॉइंट है, पूछ सकते हैं वो एग्जाम में. ठीक है ना. अब बात करते हैं अबाउट द वेरियस ऑपरेशंस दैट हैज बीन गोइंग ऑन बिकॉज द ईयर 2025 हैड सीरीज एंड इवेंट ऑफ वॉर और वॉर लाइक सिचुएशन. सो वेरियस ऑपरेशंस हैज बीन कंडक्टेड एंड इन सबको ही मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है सो दैट आपका यहाँ पे काफ़ी अच्छा से रिवीजन हो जाएगा एंड यू विल गेट टू नो. एंड यहाँ से आपका अगर क्वेश्चन आता है तो एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा. नो, सबसे पहला लेट अस सी दिस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सबसे पहला तो था हमारा ऑपरेशन सिंदूर. ठीक है, नाउ दिस ऑपरेशन सिंदूर वाज कंडक्टेड बाय इंडिया. इसके बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यू ऑल नो दिस. नाउ ऑपरेशन सिंदूर के रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने कंडक्ट किया था बुनियान अल मरसूस. ठीक है, नाउ दिस इज द वर्ड्स व्हिच इज दिस इज अ कोट व्हिच इज टेकन फ्रॉम द कुरान. ठीक है, नाउ दिस बुनियान उल मरसूस operation was conducted by Pakistan on India post Operation Sindoor. Now Operation Sindoor was highly successful. On the other hand, this Operation Bunyal Marsoos, आप सबको पता होगा, was a disastrous failure. Now ये तो हुई इंडिया पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट की बात. Now let us come to the यहाँ पे the इजराइल ईरान का कन्फ्लिक्ट. इजराइल एंड ईरान के कन्फ्लिक्ट में some of the operations that were in news. और सबसे पहला तो था राइजिंग लायन. Now this rising lion operation was conducted by Israel and in which the Israel attacked on the Iran's nuclear facilities. ठीक है, तो राइजिंग लायन ऑपरेशन was conducted by Israel against Iran. अभी ईरान में 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इसराइल ने टारगेट किया था एंड द नेम ऑफ दीज 3 साइट्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज यूपीएससी या स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशन में वो इन साइट्स का नाम दे देंगे एंड दे लास्ट दैट दी फॉर्दो, नानताज, इस्फहान. ठीक है, दीज आर रिलेटेड टू व्हाट एंड ऑप्शंस आपके दे देंगे. दीज आर द पेट्रोलियम रिजर्व्स, दीज आर द पोर्ट्स इन द मिडल ईस्ट और दीज आर द न्यूक्लियर साइट्स. सो आपको पता होना चाहिए ईरान एनरिच्ड यूरेनियम के लिए ये 3 साइट्स थी, दैट इज फॉर्दो, नानताज एंड इस्फहान. ठीक है, दीज आर द 3 साइट्स ऑफ द ईरान जहां पे इसराइल ने अटैक किया था ऑन इन द ऑपरेशन राइजिंग लायन. ठीक है, नेक्स्ट. अब इसराइल ने अटैक किया ईरान पे तो ऑब्वियसली ईरान ने रिटेलिएट किया होगा. सो द ईरान रिटेलिएशन अगेंस्ट द इजरायली स्ट्राइक वाज नोन एज ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस. ठीक है, अब ये इसराइल और ईरान के बीच में तो एक एक ऑपरेशन हो गया. देन यहाँ पे वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है यूएसए की. नाउ द यूएसए अटैक द 3 न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स ऑफ ईरान विच वेर द फॉर्दो, नानताज एंड इफ्शान. ठीक है, नाउ ये 3 साइट्स पे जो अमेरिका ने और यूएसए ने अटैक किया था, दीज वेयर कंडक्टेड बाय द B-2 बॉम्बर्स. ठीक है, दीज वेयर बाय द B-2 बॉम्बर्स एंड यहाँ से यू विल गेट टू नो दैट द B-2 बॉम्बर्स बिलोंग टू द यूएसए. इसके अलावा द बंकर बस्टर बॉम्ब, bunker busters bomb were also used. These also belong to the USA. ठीक है, and the name of this operation in which USA attacked the 3 nuclear enrichment facilities of Iran was named as the Midnight Hammer. ठीक है, यहाँ पे USA की भी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई. तो यहाँ पे ये अभी रिसेंट कन्फ्लिक्ट के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैंने आपको दी. नाउ इसके अगर पहले की मैं बात करूं, अगर मैं इजराइल और पैलेस्तीन में हमास के बीच में कन्फ्लिक्ट की बात करूं तो आयरन स्वॉर्ड ऑपरेशन ये इजराइल ने कंडक्ट किया था अगेंस्ट हमास. ठीक है, उसके अलावा
जब यहाँ पे मिडनाइट हैमर ऑपरेशन हुआ, जब यूएसए अटैक द न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट्स ऑफ ईरान, तो ईरान ने रिटेलिएट किया था अमेरिका के अगेंस्ट। कतर में जो अमेरिका का बेस है, दैट इज द अल उदीद बेस, जहाँ पे अमेरिका क्या वहाँ पे मिलिट्री बेस है, तो ईरान ने बहुत सिंबॉलिक टाइप से दे अटैक्ड द अमेरिकाज बेस इन कतर, दैट इज अल उदीद बेस, एंड दिस ऑपरेशन वाज नेम्ड एज बशीर अल फतेह। ओके, बशीर अल फतेह ये ऑपरेशन कंडक्ट किया था ईरान ने अगेंस्ट द अमेरिकन बेसेस इन दी अल उदैद बेस। आई होप कि आपको जितना भी अभी वॉर का सिनेरियो बना है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके एडिशनल एक और अगर मैं बात करूं ऑपरेशन की, विच इज वेरी मच इन न्यूज, इज ऑपरेशन स्पाइडर वेब। ठीक है, ये मैं इंक्लूड कर दूंगा यहाँ पे, ऑपरेशन स्पाइडर वेब। नाउ दिस वाज द लार्जेस्ट यूक्रेनियन ऑपरेशन एंड अ सक्सेसफुल ऑपरेशन अगेंस्ट द रशियन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, जिसमें ड्रोन्स का यूज हुआ था। सो दिस ऑपरेशन स्पाइडर वेब वाज कंडक्टेड बाय यूक्रेन अगेंस्ट रशिया। सो इसका नाम भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है वो। लेट अस नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि ये इंटीग्रेटेड करंट अफेयर सीरीज, दैट इज द संपूर्ण सीरीज आपको समझ में एंड आपको पसंद आ रही होगी, एंड यू आप इंटरेस्टिंग तरीके से इस चीज़ को पढ़ रहे होगे एंड आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अपने व्यूज़। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। इंडियाज फर्स्ट पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क हैज बीन इनॉग्रेटेड इन वेस्ट बंगाल। ये पहला स्टेटमेंट हमारा। द सेकंड स्टेटमेंट इज इंडियाज फर्स्ट ऑन बोर्ड ट्रेन एटीएम हैज बीन इंस्टॉल्ड ऑन द न्यू दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस। ये दो क्वेश्चन है एंड ये स्टेट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। नाउ अगर आपने आंसर यहाँ पे करेक्ट किया है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, तो आप बिल्कुल गलत हैं, बिकॉज इसका करेक्ट आंसर होगा नन। ठीक है, क्यों नन होगा? बिकॉज द फर्स्ट पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क दिस हैज बीन इनॉग्रेटेड इन द मध्य प्रदेश एंड नॉट वेस्ट बंगाल। ठीक है, सो फर्स्ट पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क ये मध्य प्रदेश में इनॉग्रेटेड हुए हैं। नेक्स्ट इज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द आरआरबी एग्जामिनेशन, आरआरबी एंड एसएससी टाइप के जो एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि द फर्स्ट ऑन बोर्ड ट्रेन एटीएम जो है इंस्टॉल किया गया है ऑन द पंचावटी एक्सप्रेस विच रन्स फ्रॉम मुंबई टू मनमाड जंक्शन। ठीक है, सो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हैं। अब हमारा जो मेजर पोर्शन है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है, यहाँ पे ये चीज आई होप क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज IIM Ahmedabad has become the first IIM to establish an overseas campus। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनसुख मांडविया ही हैज इनॉग्रेटेड दिस इन दुबई। अब तो आंसर दिख ही गया होगा। सो IIM अहमदाबाद का फर्स्ट IIM बना है टू इस्टेब्लिश इट्स ओवरसी कैंपस इन दुबई। ठीक है, सो दुबई इज द करेक्ट आंसर। नाउ यहाँ पे ये क्वेश्चन नेशनल अफेयर से रिलेटेड था बिकॉज इट वाज रिलेटेड टू IIM सब, बट इसमें एक इंटरनेशनल रिलेशंस का भी कंपोनेंट था, दैट इज वाई इसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है इज अबाउट द मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा बात हुई है, अभी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी हुई है। सो लेट अस सी यहाँ पे समथिंग अबाउट द मिडिल ईस्ट। नाउ सबसे पहले तो UAE की हम बात करते हैं। नाउ UAE की बॉर्डर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसका ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ UAE वुड बी कवर्ड। नाउ UAE शेयर इट्स बॉर्डर, ओमान में ये बॉर्डर शेयर करता है टू द ईस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट, सऊदी अरेबिया टू द वेस्ट एंड द साउथ। ये दो कंट्रीज तो हमारी लैंड बॉर्डर्स हो गई। इन एडिशन टू दैट मेरी टाइम बॉर्डर्स इट शेयर विद द कतर एंड ईरान इन द पर्सियन गल्फ एंड ओमान इन द गल्फ ऑफ ओमान। सो दीज आर द बॉर्डर्स जो UAE यहाँ पे शेयर करता है विद द वेरियस कंट्रीज। नेक्स्ट है सऊदी अरेबिया का भी देख लेते हैं। नाउ द सऊदी shares the border in the north with Jordan and Iraq, Kuwait, Qatar and UAE and Oman to the east southeast। ठीक है, जॉर्डन इराक के साथ तो बॉर्डर शेयर होती है, कुवैत, कतर, यूनाइटेड अरब UAE, ओमान के साथ भी बॉर्डर शेयर होती है। इन एडिशन टू दैट इट शेयर्स बॉर्डर विथ यमन टू द साउथ एंड साउथ वेस्ट एंड द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ द सऊदी अरेबिया is formed by the Red Sea, Gulf of Aqaba, which separates it from Egypt।
ना यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपसे गल्फ ऑफ अकाबा पूछा जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मिडिल ईस्ट के रीजन में है। यहाँ से आप इसको लिंक कर सकते हो इस पीडीएफ को, और इस सीरीज को आपने ऐसे यूज करना है, ठीक है। डोंट व्यू दिस सीरीज जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेंबरिंग द कंसेप्ट। सारा कुछ मैंने कल्मिनेट करके आपको एक जगह दे दिया है, बट आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है। रेड सी आपको पता होना चाहिए ये कौन से दो बॉडीज को सेपरेट करता है। देखते हैं इफ यू नो और नॉट। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर करके जरूर बताना कि रेड सी सेपरेट्स विच टू रीजन्स, ठीक है। एंड इन एडिशन टू दैट गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है, इट इज इन द मिडिल ईस्ट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं करंट अफेयर्स का कंपोनेंट, सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दैट इज वेरी मच नेसेसरी। नाउ यहाँ पे दुबई में लॉन्च होने वाली है द फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस बाय द ईयर 2026। सो यहाँ पे भी दुबई का नाम आपको ध्यान में रखना है। इन एडिशन टू दैट रिसेंटली यूएई एंड इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट, ठीक है। अब एग्रीमेंट किस चीज का है? टू बूस्ट द नॉन ऑयल ट्रेड टू $100 $100 बिलियन बाय 2030। ओके, ऑलरेडी एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि यूएई एंड इंडिया दे ऑलरेडी हैव एन एग्जिस्टिंग कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। सेपा एग्रीमेंट ऑलरेडी यूएई एंड इंडिया का यहाँ पे हो रखा है। इन एडिशन टू दैट नॉन ऑयल ट्रेड, ठीक है, क्योंकि मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट आपको पता है पेट्रोलियम रिसोर्सेज यहाँ पे ज्यादा है। बट इंडिया एंड यूएई हैज टारगेटेड दैट नॉन ऑयल ट्रेड को हमें यहाँ पे एक्सीड करना है एंड लेके जाना है टुवर्ड्स $100 बिलियन बाय 2030। ओके, नेक्स्ट इज द फर्स्ट ट्रेडिशनल हिंदू टेम्पल इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ था? ये हुआ था अबू धाबी में, दैट इज द हिंदू बाप्स टेम्पल, ठीक है, हिंदू BAPS टेम्पल। ये इनॉग्रेट हुआ है अबू धाबी में। नेक्स्ट इज यूएई इंडिया की इकोनॉमिक समिट भी रिसेंटली कंडक्ट हुई थी इन अबू धाबी। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इन द लाइन इज, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए जो आपको याद रखना ही चाहिए। नाउ द फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन 2027 इन रियाद सऊदी अरेबिया। तो फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम जो है वो 2027 रियाद सऊदी अरेबिया में यहाँ पे कंडक्ट होने वाली है। नेक्स्ट इन द लाइन 2034 में द फीफा वर्ल्ड कप विल ऑल्सो बी होस्टेड बाय द सऊदी अरेबिया, ठीक है। सो ये सारे करंट अफेयर्स आपके लिए वेरी मच इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ अब समझ में आ गई होगी, ठीक है। एंड आपको वे ऑफ टीचिंग कैसा लग रहा है वो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। एंड PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, इट इज़ अवेलेबल देयर, ये वाली PDF, ठीक है। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट मी रीड द क्वेश्चन एंड देन आप वीडियो को पॉज करके यू कैन ट्राई टू सॉल्व दिस। Which of the following statement is or are correct? Now, India's first thorium-based small modular reactor ये मुंबई में इनॉग्रेट हुआ है। नेक्स्ट है हमारा इंडियाज फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर, ये इनॉग्रेट हुआ है कलपक्कम तमिलनाडु में। दिस इज रिलेटेड टू बेसिकली साइंस एंड टेक, बट देयर इज एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट्स, दैट इज वाई इसको मैंने नेशनल में इंक्लूड किया है क्योंकि ये इंडियाज का फर्स्ट है, ठीक है। दैट इज वाई ये नेशनल करंट अफेयर्स में है एंड इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट्स करंट अफेयर, ओके। नाउ आई होप यू हैव ट्राइड दिस क्वेश्चन। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर C मार्क किया है तो आप एब्सोल्युटली करेक्ट हैं, बिकॉज द करेक्ट आंसर इज 1 and 2। सो देयर इज नॉट मच टू टेल बिकॉज ये स्टैटिक फैक्ट है। तो इंडिया का फर्स्ट थोरियम बेस्ड रिएक्टर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन मुंबई एंड फर्स्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर ये तमिलनाडु कलपक्कम में इट हैज बीन इनॉग्रेटेड। नाउ बिहार में दिस इज रिलेटेड टू द अपकमिंग द AEDO एग्जामिनेशन ऑफ बिहार एंड दी बिहार पुलिस SI का भी एग्जामिनेशन है, उसके लिए भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट में। बिहार का फर्स्ट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर ये इस्टेब्लिश होने वाला है इन नवादा, ओके। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टैटिक पॉइंट्स भी हम डील कर लेंगे। नाउ द तमिलनाडु स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिग्नाइट रिसोर्सेज इन द कंट्री, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ऑल्सो तमिलनाडु इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। अब शुगर केन मैंने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया है कि आप ये सिर्फ ना समझो कि उत्तर प्रदेश हाईएस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का तो साउथ में शुगर केन नहीं होता है, ठीक है। यू आर रॉन्ग।
The South India is a major producer of sugarcane because यहाँ पे जो sugarcane that is produced in the South India, it is a high yielding variety. It is high yielding variety and it also has a high sucrose content. The sugar content or the sucrose content of the sugarcane that is produced in the southern part of India is very much high. Okay. So Tamil Nadu is also a major producer of sugarcane. इसके अलावा जो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि which Indian state has the highest GDP growth rate in the country, and that is Tamil Nadu. Tamil Nadu from the past 3 years से Tamil Nadu की growth rate is among the highest, and इस साल तो it has touched to 9.69%. 9.69% GDP की growth rate है यहाँ पे, and it is highest in the country. And for those who are preparing for the BPSC examination, बिहार की जो रैंक है it is थर्ड. ठीक है, आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन से सेकंड हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट कौन से स्टेट की है इंडिया में. ठीक है, दिस विल टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन. इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज सेट अप अ रिव्यू, हैज सेट अप अ कमिटी टू रिव्यू द सेंटर स्टेट रिलेशंस. ठीक है, एंड इस रिव्यू कमेटी को चेयर कर रहे हैं जोसेफ कुरियन. ठीक है, so this is all important information regarding the Tamil Nadu. Next question आता है हमारा about the 47th session of the World Heritage Committee. ये कहाँ पे held हुआ था, and ये question बहुत important है, and इसी question में around 30 plus important points मैं आपको बता दूंगा. ये इतना important है, and यहाँ से one question तो पक्का है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा. करंट अफेयर्स का आए ना आए, स्टैटिक का तो आएगा ही आएगा. ये आई एम डेड श्योर अबाउट दिस. ठीक है, now talking about the 47th session of the World Heritage Committee, ये कहाँ हेल्ड हुआ था? सो इफ यू आर मार्क द आंसर पेरिस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस वाज हेल्ड इन पेरिस. अब व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? आप तो बोलोगे कि ये तो इंटरनेशनल रिलेशंस में होना चाहिए, बट ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इन द 47th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी विच वॉज रिसेंटली कंक्लूडेड इन पेरिस, यहाँ पे जो है इंडियाज मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स were inscribed as a UNESCO World Heritage Site. ठीक है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑब्वियसली यहाँ पे इट इज अ सीरीज ऑफ 12 फोर्ट्स. ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है, एंड आगे एक और स्टेट में है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसका भी नाम बताऊंगा, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा आपको. ठीक है, सो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, दीज हैव बीन एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इट इज द 44th साइट फॉर द कंट्री. सो यहाँ से दो क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए. द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, दीज हैव बीन designated in the UNESCO World Heritage Site, and total as of now, as of September 28th की मैं बात कर रहा हूँ, as of September 28th 44 यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं इंडिया में. Now these are the name of the sites: सालहर, शिवनेरी फोर्ट, लोहगढ़ फोर्ट, खंडेरी फोर्ट, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्गा, पनहला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग. ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 12 लैंडस्केप्स बताए थे मैंने आपको. 11 ऑफ दीज आर इन महाराष्ट्र. ठीक है, अब क्योंकि ये मराठा है तो आपको ये लगेगा कि सारे फोर्ट्स तो महाराष्ट्र में ही होंगे, बट यू आर रॉन्ग. एक फोर्ट है यहाँ पे जो जिंजी फोर्ट है, दैट इज देयर इन तमिलनाडु. ठीक है, सो इस फोर्ट का नाम भी याद रखना है एंड द स्टेट ऑल्सो यू नीड टू नो. सिंपल सा इतनी चीज आप ध्यान में रखना कि जिंजी फोर्ट इज इन तमिलनाडु. टोटल 12 फोर्ट्स हैं जिसमें कि एक फोर्ट हमारा जिंजी फोर्ट इज इन तमिलनाडु एंड द रेस्ट 11 फोर्ट्स आर इन महाराष्ट्र. ठीक है, इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे इतना कंटेक्स्ट आपको पता होगा, सो इट इज वेरी मच सफिशियंट. नाउ इंडिया नाउ हैज 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड द रैंक ऑफ इंडिया इज 6th. एंड ग्लोबली अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड साइट्स की, सो इंडिया का ग्लोबली रैंक 6th है इन दी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. अब आ गई यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. अब मैं बात करूंगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स. ठीक है, जिसमें कि जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस आप देख रहे हो ना, पेरिस, जेनेवा, वाशिंगटन डीसी, लंदन, अब इन 4 कंट्रीज में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर है वो सारा का सारा हम इस स्लाइड में डील कर लेंगे. ठीक है, तो कितने क्वेश्चंस आपके कवर हो गए, इससे आपको इसी चीज से पता चल गया होगा. नाउ टॉकिंग अबाउट द पेरिस, पेरिस में कौन कौन से इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर है? फर्स्ट इन द लाइन इज यूनेस्को, एंड दिस the first one is the very very important one,
दैट इज द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का हेडक्वार्टर हमारे पेरिस में है। नेक्स्ट इज पेरिस में हेडक्वार्टर है OECD का, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। नाउ अगर मैं OECD के बारे में बात करूं तो इसका OECD का हेडक्वार्टर हमारा ये भी पेरिस में है। नेक्स्ट इज अबाउट द FATF। FATF का हेडक्वार्टर्स दिस इज इन और FATF का हेडक्वार्टर भी पेरिस में है, दैट इज द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। नेक्स्ट इन द लाइन इज IEA, दैट इज द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एजेंसी एनर्जी एजेंसी का भी हेडक्वार्टर्स इज इन पेरिस ओनली। ठीक है, इसके अलावा ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज एन एजेंसी विद इन दी OECD फ्रेमवर्क। ये OECD के अंदर ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन एडिशन टू दैट स्पेस एजेंसीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर भी पेरिस में है। सो पेरिस से रिलेटेड हमने 1 2 3 4 5 हेडक्वार्टर्स देखे, एंड ये 5 ही आपके लिए सफिशिएंट एंड इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। नेक्स्ट इन द लाइन इज जेनीवा। जेनीवा इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जेनीवा में हेडक्वार्टर है WHO, दैट इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। इन एडिशन टू दैट जेनीवा में हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, दैट इज द UNHCR। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज UNCTAD, दैट इज UNCTAD, विच इज द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका भी हेडक्वार्टर है जेनीवा में। नेक्स्ट इन द लाइन इज WTO, दैट इज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर है हमारे जेनीवा में। एंड नेक्स्ट इज द गावी अलायंस। अब गावी हैज बीन इन न्यूज पोस्ट कोविड। पोस्ट कोविड जो है वो गावी न्यूज में रहा है बिकॉज यहाँ पे गावी इज एन वैक्सीन अलायंस, इट इज एन वैक्सीन अलायंस, एंड गावी का भी जो हेडक्वार्टर्स है दिस इज इन जिनीवा। ठीक है, आई होप कि यहाँ से आपको सारे फैक्ट समझ में आ गए होंगे। अभी हमारे 2 ऑर्गेनाइजेशंस और बच रही हैं, दैट इज द वॉशिंगटन एंड लंदन। अब इफ आई टॉक अबाउट वॉशिंगटन, सो वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर्स है हमारे IMF का, दैट इज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके एडिशनल अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वी नो वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ 5 ऑर्गेनाइजेशंस, एंड ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही हेडक्वार्टर्स है हमारे वॉशिंगटन DC में, विच इज द IBRD, IDA, IFC, मीगा एंड ICSID। एंड आपको मुझे बताना है कि ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जो 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ 4 ऑफ देम। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ 4 ऑफ देम। ठीक है, कौन सी इनमें से ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेंबर इंडिया नहीं है? इंडिया इज नॉट अ मेंबर अमंग दीज, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग 5 वर्ल्ड बैंक ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन? दिस यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, लेट अस सी आपने इंटरनेशनल रिलेशंस को कितने डेप्थ में पढ़ा है। नेक्स्ट इन द लाइन इज लंदन। अब लंदन भी 3 इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं लेके आऊँ आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। द फर्स्ट वन इज इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज IMO का हेडक्वार्टर्स इज इन लंदन। इन एडिशन टू दैट इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर है लंदन में। इफ आई टॉक अबाउट द वर्क दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन डू is that it is an intergovernmental body for coffee exporting and importing countries। जो countries कॉफी को एक्सपोर्ट करती हैं एंड इंपोर्ट करती है, दिस इज एन इंटरगवर्नमेंटल बॉडी फॉर दैट। एंड नेक्स्ट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका बहुत ज्यादा आपने नाम सुना होगा बिकॉज दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग फॉर द ह्यूमन राइट्स। एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी हेडक्वार्टर्स लंदन में ही है। सो यहाँ से आई होप कि आपका ये सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड वाइल्ड लाइफ ओवरपास हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच एक्सप्रेसवे? ठीक है, द ऑप्शंस आर द्वारका एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एंड ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। सो यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन इफ यू वांट। सो आई होप कि आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। सो द करेक्ट आंसर, अगर आपने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे मार्क किया है तो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में फर्स्ट डेडिकेटेड वाइल्ड लाइफ ओवरपास हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, एंड ये जो 12 किलोमीटर का सेगमेंट यहाँ पे
कंस्ट्रक्ट किया गया है, दिस सेगमेंट पासेस थ्रू द रांथम्बोर टाइगर रिजर्व एंड दिस रांथम्बोर टाइगर रिजर्व इज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ये तो आपको पता होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टेट मेंशन नहीं किया, ठीक है। दिस रांथम्बोर टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन राजस्थान। अब हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है राजस्थान। अब राजस्थान से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स होंगे या जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सारा का सारा हम इसी वीडियो में डील कर लेंगे। ओके, नाउ बात करते हैं अबाउट राजस्थान की कुछ ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट की। नाउ द राजस्थान इज द लार्जेस्ट इंडियन स्टेट, ठीक है। बाय एरिया अगर मैं बात करूं, इट इज द लार्जेस्ट इंडियन स्टेट विद द 10.6% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। Rajasthan has 10.6% of the geographical area of the country and it is the largest Indian state. अब आया अगर बात रिवर सिस्टम की, तो लेट अस सी राजस्थान में मेनली कौन कौन से रिवर्स यहाँ पे हैं। तो द लार्जेस्ट रिवर इन राजस्थान इज चंबल। इट इज द लार्जेस्ट पेरिनियल रिवर ऑफ राजस्थान। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड ड्रेन्स इनटू द यमुना। सो चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना, यहाँ से आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज इन राजस्थान। अब मैं चंबल रिवर की आपको कुछ ट्रिब्यूटरीज बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको ज्योग्राफी का भी पोर्शन रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप ध्यान रखना, चंबल की ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो काली सिंध, पार्वती एंड बानस, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द चंबल रिवर, ठीक है। इफ आई talk in whole about the river system, so most of the rivers of the Rajasthan originates from the Aravalli range and this exhibits seasonal flow due to the region arid climate because Rajasthan is a basically a dry state, ज़्यादा बारिश नहीं होती है। so this इसमें seasonal flow होता है जिसमें भी से मानसून के टाइम में the flow is very much higher as compared to the complete whole year, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं about the political aspect। यहाँ पे करंट अफेयर्स का पार्ट है ये, इसको ध्यान में रखना। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? सो भजन लाल शर्मा इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है हमारा गवर्नर ऑफ राजस्थान। सो हरिभाऊ किशन राव बगादे इज द राजस्थान गवर्नर, ठीक है, समझ में आ गया इतना पॉइंट। नेक्स्ट अगर मैं बात करते हैं राजस्थान से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की। नाउ सबसे पहले तो राजस्थान ने इंट्रोड्यूस किया है लास्ट ईयर एन एम सैंड पॉलिसी। नाउ एम सैंड स्टैंड्स फॉर द मैन्युफैक्चर सैंड। अब हमें पता है द सैंड इज मेजरली एक्सकवेटेड फ्रॉम द रिवर बेड। रिवर बेड से सैंड को एक्सकवेट करते हैं, सैंड की इलीगल माइनिंग होती है। एंड टू स्टॉप दिस माइनिंग एंड द एडवर्स इफेक्ट जो होता है ऑन द इन्वायरमेंट एस्पेक्ट पे जो इसका इम्पैक्ट होता है, जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है रिवर में, इसको काउंटर करने के लिए एम सैंड इज द आर्टिफिशियल सैंड। सो राजस्थान हैज इंट्रोड्यूस्ड द एम सैंड पॉलिसी विच वर्क्स एज अ सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू द नेचुरल रिवर सैंड। समझ आ गया। नेक्स्ट इज रिसेंटली अभी लास्ट मंथ ही मेरे ख्याल से जुलाई के मंथ में 2 इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स राजस्थान से इंक्लूड की गई है इनटू द रामसर साइट्स। ये है किचन एंड मेनार। These 2 sites are in राजस्थान एंड ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है। 110% मेरे से लिखवा के रख लो, रामसर साइट पे ये क्वेश्चन आने वाला है। किचन एंड मेनार, दीज 2 sites बिलोंग टू द स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। अब राजस्थान से रिलेटेड अगर मैं इकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करूं, सो देयर इज अ बर्ड दैट इज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज अ बर्ड। अब इसको मैंने क्यों इंक्लूड किया है? बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट किया था कि वी गेट इन आवर होम वी गेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द वायर्स। इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं जो पोल से आती हैं, उनसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है। सो इन द सेम वे हर एरिया में ऐसा ही होता है। सो इन द एरिया अराउंड द राजस्थान एंड इन द एरिया अराउंड द डेजर्ट नेशनल पार्क ऐसे ही ओवरहेड केबल्स, इलेक्ट्रिसिटी केबल्स यहाँ पे ऑपरेट हो रही थी। एंड ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन इट डाइड ड्यू टू दीज इलेक्ट्रिकल केबल, ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर्स, ठीक है। एंड दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप इन ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर्स का कोई सोल्यूशन निकालो, इनको अंडरग्राउंड करो, क्योंकि इनके वजह से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पॉपुलेशन यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो सकती है ऑलरेडी, क्योंकि द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन इंडिया। एंड IUCN का स्टेटस की मैं बात करूं तो इट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड इसके जो ऊपर होता है ना वो एक्सटिंक्ट ही होता है। सो दिस बर्ड इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। सो
इसकी प्रिजर्वेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, एंड दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। प्रोमिनेंटली ये राजस्थान में ही मिलती है, एंड इट इज ऑल्सो फाउंड इन सम ऑफ द रीजन्स ऑफ गुजरात, बट राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में मेनली कॉन्सेंट्रेटेड हैं। ठीक है, सो दीज आर फाउंड इन द डेजर्ट नेशनल पार्क ऑफ जैसलमेर। यहाँ से आपको पार्क का भी, नेशनल पार्क का भी नाम पता होना चाहिए। स्टेट तो आप समझ गए होंगे, राजस्थान है। डेथ ड्यू टू ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर्स, दैट इज व्हाई दिस इज इन न्यूज। एंड IUCN की मैं बात करूं तो दिस स्पीसीज इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है हमारा जिसमें आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। Now, the first green municipal bond, it was issued by the Ghaziabad Municipal Corporation. This is important. ठीक है, क्योंकि पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड है इंडिया का, दैट इज वाई ये नेशनल अफेयर्स का पार्ट है। इन एडिशन टू दैट, इंडियाज फर्स्ट डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड बाय भोपाल। आपको बताना है ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, और नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो अगर आपने आंसर किया है ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली वन। स्टेटमेंट 2 करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि जो हाउस एड्रेस, डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोजेक्ट है, इट हैज बीन लॉन्च्ड इन इंदौर। ये लॉन्च हुआ है इंदौर में, ना कि भोपाल में। ठीक है, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। अब इंदौर इज वेरी मच इन न्यूज, एंड ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी बनाता है, दैट इज वाई इंदौर से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, जो कि पास्ट 1.5 ईयर्स के हैं। ठीक है, इससे बाहर आपसे क्वेश्चन वो नहीं पूछेंगे। The first thing is Indore has become the cleanest city in India for the 8th consecutive time in the Swachh Sarvekshan of 2025 425। Recently 2 months पहले स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है 2024-25 की, in which Indore has secured the first rank। ठीक है, इसके अलावा सूरत एंड नवी मुंबई भी लिस्ट में है। आपको मुझे बताना है कि इसमें से सूरत का रैंक क्या था, नवी मुंबई का क्या रैंक था। मतलब रैंक तो दो ही हुए, एक या तो सेकंड है या थर्ड है। आपको मुझे बताना है कि सूरत का ये क्या सेकंड रैंक था या थर्ड रैंक था, या नवी मुंबई का सेकंड या थर्ड रैंक था। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट इज इंदौर में MP ग्रोथ कॉन्क्लेव ऑफ 2025 वाज होस्टेड इन इंदौर, सो दैट इज आल्सो व्हाई इंदौर इज इंपॉर्टेंट। एंड ये भी एक इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि इंदौर हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट बेगर फ्री सिटी, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंदौर की, तो इंदौर आता है हमारे मध्य प्रदेश में। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। ठीक है, वी विल सी ऑल द फैक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू मध्य प्रदेश। नाउ द मध्य प्रदेश इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन स्टेट, ये आपको पता होगा। फर्स्ट हमने यहाँ पे देख लिया, फर्स्ट हमारा राजस्थान है। राजस्थान इज द लार्जेस्ट इंडियन स्टेट, सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन स्टेट इज मध्य प्रदेश। इफ आई टॉक अबाउट द रिवर सिस्टम इन मध्य प्रदेश, so Narmada is the state's longest river. Tapi also flows. Chambal, Betwa, Son, Mahi, Ken, Shipra, these are the prominent rivers of Madhya Pradesh. But Narmada is the largest river. एंड अगर मैं बात बताऊं, नर्मदा, तापी एंड माही, इन तीन रिवर्स का नाम आपको याद रखना है। कौन से तीन रिवर्स का? पहली तो है नर्मदा, सेकेंड है तापी, थर्ड वन इज माही। क्यों इनका नाम इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑल ऑफ दिस रिवर्स फ्लोज वेस्टवर्ड, वेस्टवर्ड फ्लो करती हैं, एंड इट ड्रेन्स इनटू, दीज थ्री रिवर्स ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी। ठीक है, तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द मध्य प्रदेश पॉलिटी, तो करंट चीफ मिनिस्टर इज मोहन यादव एंड द गवर्नर इज मंगूभाई छगन भाई पटेल इज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ये हमारा सेकंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। यहाँ पे देखो कितने सारे करंट अफेयर्स यहाँ पे इंक्लूड किए हैं मैंने। सो यहाँ से आपका मध्य प्रदेश से रिलेटेड और सारे भी करंट अफेयर्स बहुत एफिशिएंटली डिवाइस हो जाएंगे। सो लेट अस सी दिस वन बाय वन। नाउ द फर्स्ट थिंग इन लाइन इज मध्य प्रदेश हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ बायोफ्यूल इनिशिएटिव। ठीक है, ये एमसैंड को इग्नोर करना, ये यहाँ पे गलती से मेंशन हो गया। इन द PDF आई विल करेक्ट दिस। लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने बायोफ्यूल इनिशिएटिव। नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम इन विच
The Madhya Pradesh Forest Department has successfully bred and prepared 6 vultures for release into the wild. This initiative aims to boost the endangered vulture population and enhance the ecological balance. So vulture conservation के लिए project has been undertaken by मध्य प्रदेश. ये भी important है, ये आपको पता होना चाहिए. Next is about the Global Capability Center 2025 policy. Madhya Pradesh has become the first state in India to do so. Now, Global Capability Center का यहाँ पे target है to establish the state as a premier hub for global innovation and collaboration. So, questions आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि the Global Capability Center policy has been undertaken by which Indian state? So, this is the state of Madhya Pradesh. Next is the Madhya Pradesh government has also launched a Parth Yojana. So, ये योजना and scheme से related question है. Now, the Parth Yojana is aimed to empower youth for career in the defense and law enforcement. That is why this is also important. ठीक है? So, Parth Yojana has been undertaken by the Madhya Pradesh government. Next is the Madhya Pradesh has been named as a global destination of 2025 by the Wall Street Journal. ये भी important है. जितने भी फैक्ट्स यहाँ पे करंट अफेयर के मैं लेके आया हूँ ये सबके सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जैसे कि आप फैक्ट से समझ पा रहे होंगे. ठीक है. सो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मध्य प्रदेश को बताया है एज अ ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर द 2025 ईयर. नेक्स्ट इज रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माधव नेशनल पार्क. ये दोनों भी न्यूज में रहे हैं एंड दैट इज वाई आपको पता होना चाहिए. रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, माधव नेशनल पार्क, बोथ ऑफ दीज आर इन मध्य प्रदेश. ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे. नेक्स्ट देखते हैं हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस क्वेश्चन इज अबाउट Which of the following statement are correct? पहला तो है यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड किया गया है गरबा को. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी डिक्लेयर किया गया है श्रीनगर को रिसेंटली. नेक्स्ट इज द फर्स्ट सिटी इन यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क इज कोझिकोड. ये 3 स्टेटमेंट है, आपको बताने हैं कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है. अब करेक्ट आंसर हमारा ऑल ऑफ दीज है बिकॉज यहाँ पे सारे क्वेश्चंस सारे जो स्टेटमेंट है दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर. नाउ अब बात करते हैं अबाउट यूनेस्को. ये तो हमने देख लिया था कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स इज इन पेरिस. ये तो हमने वी हैव ऑलरेडी सीन दिस. बट अब इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट द यूनेस्को. यहाँ से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा एंड इसके बाद आपको कुछ भी यूनेस्को से रिलेटेड प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल द यूनेस्को इज टर्म्ड एज द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1945. ठीक है, दिस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1945. अब यूनेस्को का एम क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ यूनेस्को? द यूनेस्को इज टू प्रमोट पीस and security through international cooperation in education, science, culture and the communication center. This is the main aim and objective of UNESCO. UNESCO यहाँ पे रिलीज भी करता है some of the reports. So the name of the reports is very much necessary. कौन कौन से reports हैं? Let us see. The first one is Global Education Monitoring GEM report. Second one is United Nations World Water Development Report, that is the WWDR. नेक्स्ट इज मैकब्राइड रिपोर्ट जिसका थीम है मेनी वॉइसेस वन वर्ल्ड. दिस ऑल्सो इज रिलीज बाय यूनेस्को. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इज वर्ल्ड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स एंड द नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड सोशल साइंस एंड कल्चरल रिपोर्ट. ठीक है, दीज आर द नेम ऑफ रिपोर्ट. लेट मी रिपीट इट वंस अगेन सो दैट आपको रिवाइज हो जाए. ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग GEM रिपोर्ट, ये यहाँ पे रिपोर्ट का नेम इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इज यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट WWDR. दिस इज ऑल्सो रिलीज बाय यूनेस्को. नेक्स्ट इज मैकब्राइड रिपोर्ट, वर्ल्ड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एंड द वर्ल्ड सोशल साइंस एंड कल्चरल रिपोर्ट. ऑल ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर रिलीज बाय यूनेस्को. ठीक है, नाउ विद दिस वी आर डन विद द टुडेज सेशन. कमेंट करके आप बता सकते हैं आपको सेशन कैसा लगा. अगर आपको इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. इस इनिशिएटिव में आपको सब PDFs मिलेंगी. अराउंड 1.5 मंथ्स के अराउंड ये इनिशिएटिव चलेगा जिसमें कि मैं आपको ट्राई 14 to 15 लंबी वीडियोस मिलेंगी आपको. इसमें वीडियोस के साथ PDF भी मिलेगी एंड इस इंटीग्रेटेड करंट अफेयर सीरीज में आपका करंट अफेयर्स तो कंप्लीट मैं करवाऊंगा ही, साथ में इसके स्टैटिक भी कंप्लीट करवाऊंगा. सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द इनिशिएटिव आप टेलीग्राम पे क्वेरी कर सकते हैं. और इफ़ यू वांट टू बाय दिस इनिशिएटिव
यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। इस इनिशिएटिव का चार्ज सिर्फ 149 रुपीज़ है, जिसमें कि आपको पीडीएफ्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, एंड इन एडिशन टू द पीडीएफ्स वी विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड विद अ वीडियो दैट इज बी एक्सक्लूसिव टू यू। ठीक है, यूट्यूब के प्राइवेट सेक्शन में मैं वीडियोस पोस्ट करूंगा एंड आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे। तो वीडियोस के साथ ये पीडीएफ की सीरीज है, इट इज अवेलेबल इन 149। इफ यू ट्रस्ट मी तो यू कैन स्ट्रेट अवे ज्वाइन द कंटेंट दैट इज अवेलेबल टू यू। ऐसा ही कंटेंट आपको मिलेगा इस सीरीज में। ठीक है, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, एंड यू कैन ऑल्सो शेयर दिस इफ यू find this video beneficial. So thank you for watching this video. Keep studying.